Assalamu alaikum aspirants. Welcome to the fourth lecture of CSS MPT 2026 Practice Model Paper Set 1. In this session, we cover Section 5, General Knowledge including Everyday Science, Current Affairs and Pakistan Affairs from questions 151 to 200. Focus on understanding key facts, recent developments and important national and international events as this knowledge is essential for scoring well in the exam. सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हमारे पास 151 क्वेश्चन है. द केमिकल सिंबल फॉर वाटर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड और ऑक्सीजन. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी में H2O. द वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, केमिकली रिप्रेजेंटेड एज H2O, and it is essential for life and covers 71% of Earth's surface. Next question, which planet is known as the red planet? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है मॉस. मॉस appears red due to iron oxide on its surface and its color is visible through telescope and in spacecraft images. Next question है primary source of energy for earth climate, geothermal heat, solar radiation, nuclear fusion or tidal forces. तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है solar radiation. The sun drives weather patterns and ocean currents through solar radiation. It provides 99.9% of Earth's climate energy. Next question, process plants use to convert sunlight into food, respiration, photosynthesis, fermentation or transpiration. तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है photosynthesis. Photosynthesis uses sunlight, carbon dioxide and water to produce glucose and oxygen. It sustains plant life and global oxygen levels. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है ओम. ओम measures resistance to electric current flow named after George Ohm and it's defined as 1 volt per ampere. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वाइटामिन हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा वाइटामिन हेल्प करता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन के. तो इसका जो यानी कि ऑप्शन डी है वो सही जवाब है विटामिन के. Vitamin K is essential for synthesizing proteins that regulate blood clotting and deficiency can cause excessive bleeding. Next question है hardest substance in human body. तो hardest substance जो है human body में enamel है. Tooth enamel made of calcium phosphate is harder than bone and it protects teeth from wear and decay. The next question है gas humans exhale during respiration. तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड. Human inhale oxygen and exhale carbon dioxide is a waste product of cellular respiration and it's expelled through the lungs. Next question, SI unit of force. तो force का SI unit Newton है. A Newton is the force required to accelerate 1 kg by 1 meter per second square and it's named after Sir Isaac Newton. Next question, brain part controlling balance and coordination. तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है सेरेबेलम. द सेरेबेलम कोऑर्डिनेट्स वॉलंटरी मूवमेंट्स लाइक बैलेंस एंड पोस्चर एंड डैमेज काज मोटर स्किल इम्पेयरमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काजेज अर्थ सीजन्स, डिस्टेंस फ्रॉम सन, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, मून्स ग्रेविटी. तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस. Earth 23.5 degree axial tilt causes varying sunlight angles through its orbit and this creates seasonal changes in temperature and daylight. Next question, primary source of vitamin D. Vitamin D का primary source sunlight है. Sunlight triggers vitamin D synthesis in the skin and dietary sources like fish or milk supplement this process. Next question, second abundant gas in atmosphere. Second most abundant gas in atmosphere is oxygen. Oxygen constitutes 21% of atmosphere, following nitrogen 78%, and it's vital for respiration and combustion. Next question, boiling point of water at sea level is 100 degrees centigrade, option B. Water boils at 100 degrees centigrade under standard atmospheric pressure. Altitude or pressure changes can alter this point. Next question, instrument measuring atmospheric pressure is option B, barometer. A barometer measures air pressure, aiding weather forecasting, and mercury or anoride types are commonly used. Next question, chemical formula for table salt. तो table salt का chemical formula है NaCl. Sodium chloride. Table salt is sodium chloride composed of 1 sodium and 1 chlorine atom, and it's widely used in food and industry.
तो जनरल नॉलेज के इस सेक्शन में अब हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2025 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप met with Arab and Muslim leaders on the sideline of the UN General Assembly to discuss the Gaza situation. Which country अमीर को hosted the meeting with Trump? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, कतर। सितंबर 2025 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन की जनरल असेंबली के मौका के ऊपर अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात की ताकि गज़ा की सूरत हाल के ऊपर बातचीत की जा सके। तो किस मुल्क के अमीर ने ट्रंप के साथ इस मुलाकात की मेज़बानी की? तो इसका सही जवाब है कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद अरब एंड मुस्लिम लीडर्स इन सितंबर 2025 ट्रंप प्रॉमिस्ड नॉट टू अलाउ इजराइल टू एनेक्स विच टेरिटरी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, वेस्ट बैंक। ठीक है, सितंबर 2025 में अरब और मुस्लिम रहनुमाओं के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने वादा किया कि इसराइल को जो है वो वेस्ट बैंक को ज़िम्म करने की इजाज़त नहीं देंगे। यूएन में अरब और मुस्लिम जो रहनुमा थे उनके साथ बंद कमरा इजलास हुआ और उसमें सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर यह यकीन दहानी कराई कि वो इसराइल को वेस्ट बैंक को ज़िम्म करने की इजाज़त नहीं देंगे। और वेस्ट बैंक जो है ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है जो काफ़ी अरसे से इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का मरकज़ रहा है। और ये वादा गज़ा में अमन कायम करने की जो है वो यानी कि वसी तर बातचीत का हिस्सा था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रंप सितंबर 2025 प्रपोजल टू अरब एंड मुस्लिम लीडर्स इंक्लूडेड अ प्लान फॉर इस्लामिक कंट्रीज टू टेम्परेरी एडमिनिस्टर विच रीजन? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, गज़ा। ट्रंप के सितंबर 2025 की तजवीज़ में मुस्लिम ममालिक को किस इलाके की आर्जी निगरानी की जिम्मेदारी देने की बात की गई? तो गज़ा की जंग को ख़त्म करने के मंसूबे के हिस्से के तौर पर ट्रंप ने सितंबर 2025 के इजलास में तजवीज़ दी कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो गज़ा की आर्जी इंतज़ामी ज़िम्मेदारी संभालें ताकि जंग के बाद तमीर नामुमकिन हो और हुक्मरानी के लिए माहौल को भी बेहतर बनाया जा सके। तो जो ट्रंप ने तजवीज़ दी, इस तजवीज़ का मकसद ये था कि अमन कायम रखने में आसानी हो और मज़ीद कशीदगी ना बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी पॉइंट्स वर इन द प्लान ट्रंप प्रेजेंटेड टू अरब एंड मुस्लिम लीडर्स इन सितंबर 2025 टू एंड द वार इन गज़ा? सितंबर 2025 में ट्रंप ने अरब और मुस्लिम रहनुमाओं को गज़ा की जंग को ख़त्म करने के लिए कितने नुकात पर मुश्तमिल मनसूबा पेश किया? तो सदर ट्रंप का मनसूबा जो है वो 21 पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल था, जिसमें गज़ा और इसके साथ मशरिक़ वस्ता के लिए अमन का एक मुनज़्ज़म खाका शामिल था। इसमें जंग बंदी की बात की गई, तामीर नो और इसके साथ साथ इलाकाई इंतज़ाम, इक़्तिसादी इमदाद और सिक्योरिटी ज़मानतों के नुकात इसके अंदर शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ वाज नॉट रिप्रेजेंटेड इन ट्रंप सितंबर 2025 मीटिंग विद अरब एंड मुस्लिम लीडर्स ऑन गज़ा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, ईरान। 10 में से कौन सा मुल्क जो है वो सितंबर 2025 में ट्रंप के अरब मुसलमान रहनुमाओं से मुलाकात में मौजूद नहीं था? तो ये इजलास जिसकी मेज़बानी ट्रंप और कतर के अमीर ने की, इसमें इंडोनेशिया के जो है वो नुमाइंदा भी शामिल था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शामिल थे, तुर्की के प्रेसिडेंट और सऊदी अरब, इसके साथ साथ यूएई, मिस्र और उर्दन के नुमाइंदे भी इसमें शरीक थे। लेकिन ईरान इसमें शामिल नहीं था और इसकी वजह अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जोग्राफियाई सियासी कशीदगी है और वो इसकी वजह है और ख़ित्ते में मुख्तलिफ तरजीहात भी थी। उसके बाद इन हिज एड्रेस टू द यूएन जनरल असेंबली ऑन 23 सितंबर 2025 ट्रंप डिस्क्राइब द क्लाइमेट चेंज एजेंडा इज़ व्हाट? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, द ग्रेटेस्ट गॉन जॉब एवर। 23 सितंबर 2025 को यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए जो है ट्रंप ने माहौलियाती तब्दीली के एजेंडे को किस तरह बयान किया? तो ट्रंप ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा धोखा कहा। यूएन की जनरल असेंबली में तकरीबन 1 घंटे के खिताब के दौरान सदर ट्रंप ने आलमी माहौलियाती तब्दीली के एजेंडे के ऊपर भी सख्त तनकीद की और उसे दुनिया के ऊपर खेला गया सबसे बड़ा धोखा कहा। और ये भी ट्रंप ने कहा कि ममालिक को इन पॉलिसियों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये मईशत के ऊपर बोझ डालते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुल्कों को जो है अपनी खुद मुख्तारी इक़्तिसादी जो तरजीहात हैं उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग हिज सितंबर 2025 यूएन स्पीच ट्रंप एम्फसाइज्ड रिजेक्टिंग व्हाट इन फेवर ऑफ नेशनल सोवरेनिटी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, ग्लोबलिज्म। सितंबर 2025 के यूएन खिताब में ट्रंप ने कौमी खुद मुख्तारी के हक़ में किस चीज़ को मुस्तरद करने के ऊपर जोर दिया? तो सदर ट्रंप ने जनरल असेंबली के खिताब में कहा कि दुनिया के ममालिक को ग्लोबलिज्म को छोड़ देना चाहिए और अपनी खुद मुख्तारी को अपनाना चाहिए। उन्होंने
बैनुल-अक़वामी निज़ाम को भी तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि ये जो तनाज़ात को हवा देता है और जो अनफरादी ममालिक हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान पहुँचाता है। और इसके साथ साथ ट्रंप ने यूएन के ऊपर भी ये तनकीद की कि ये अपने मकसद में कामयाब नहीं रहा। इन्होंने जो है वो इमिग्रेशन और जो माहौलियाती पॉलिसी हैं उनको भी गलत आलमी इक़दाम की मिसालें करार दिया और अमेरिका को एक ऐसा मुल्क कहा जो आज़ाद फैसले करता है और अपने अवाम के फ़ायदे के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन हिज यूएन जनरल असेंबली स्पीच ऑन सितंबर 23, 2025 ट्रंप अर्ज अ टर्न अवे फ्राम पॉलिसीज रिलेटेड टू व्हाट ग्लोबल इशू। ट्रंप ने 23 नवंबर 2025 को जनरल असेंबली में अपने खिताब में किन आलमी पॉलिसियों से हटने की अपील की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, माहौलियाती तब्दीली से। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में ममालिक से कहा कि वो क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक जो पॉलिसी है उससे पीछे हट जाएं और उन्होंने इन पॉलिसियों को कहा कि ये अगर मौसर हैं और मईशत के लिए भी नुकसानदेह हैं। तो इसके साथ उन्होंने जो है वो विंड एनर्जी जैसे जो सोर्सेज हैं उनको भी नाकाबिल एतमाद कहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रंप सितंबर 2025 यूएन स्पीच क्रिटिसाइज द यूनाइटेड नेशंस फॉर नॉट लिविंग अप टू व्हाट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, इट्स फाउंडिंग आइडियल्स। ट्रंप के यूएन खिताब में जो है यूएन पर किस बात के ऊपर तनकीद की गई? तो ट्रंप ने कहा कि अपने जनरल असेंबली के खिताब में यूएन के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया कि ये अपने असूलों के ऊपर पूरा नहीं उतरा और उन्होंने उसे एक खोखला इदारा कहा जो अमन और तामन को फ़रोग देने में नाकाम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री प्रेजिडेंट स्पोक बिफोर ट्रंप इन द यूएन जनरल असेंबली ऑन सितंबर 23, 2025। 23 सितंबर 2025 को यूएन जनरल असेंबली में ट्रंप से पहले किस मुल्क के सदर ने खिताब किया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। यूएन की जनरल असेंबली की जो पुरानी रवायात हैं उनके मुताबिक ब्राज़ील जो है वो सबसे पहले खिताब करता है। तो 2025 में भी ब्राज़ील के सदर जो यानी ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट हैं लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, उन्होंने ट्रंप से पहले खिताब किया और उसके बाद ट्रंप ने जो है वो खुद मुख्तारी और ग्लोबलिज़म की मुखालफत की और इमिग्रेशन, माहौलियाती तब्दीली जैसे जो मौज़ूआत हैं उनके ऊपर उन्होंने तकरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2025 वायलेंट यूथ प्रोटेस्ट डिमांडिंग स्टेटहुड 6 शेड्यूल स्टेटस अकर्ड इन विच रीजन लीडिंग टू डेथ एंड इंजरीज। सितंबर 2025 में नौजवानों के रियासती दर्जा और 6 शेड्यूल स्टेटस के मुतालबे पर पुरतशद्दुद एहतजाज किस इलाके में हुआ और इसमें हलाकतें भी हुई और लोग भी ज़ख्मी हुए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, लद्दाख में। सितंबर 2025 में लद्दाख में जो है वो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए जिनमें जो है वो यानी स्टेटहुड और 6 शेड्यूल स्टेटस में जो शमूलियत का मुतालबा किया गया ताकि जो मकामी ज़मीन है और सकाफ़ती हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हिज विजिट टू मार्को फ्राम सितंबर 22 to 23, 2025 इंडिया यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग टाइज इन विच सेक्टर? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, डिफेंस। 22 और 23 सितंबर 2025 को इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मराकश के दौरे में किस शोबे में ताल्लुकात मजबूत करने के ऊपर तवज्जो दी? तो इसका सही जवाब है दिफा। Next question, in September 25, Nepal deployed its military to enforce a curfew in Kathmandu due to protest over what issue? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, एंटी करप्शन। सितंबर 2025 में नेपाल ने काठमांडू में कर्फ्यू नाफिज करने के लिए फ़ौज को क्यों तैनात किया? तो यानी एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ सितंबर 2025 में नेपाल की जो दल हुकूमत काठमांडू है इसमें फ़ौज तैनात की गई ताकि जो बढ़ती हुई यानी कि करप्शन है के मुखालिफ जो करप्शन के यानी कि जो मुखालिफ मुजाहिरीन हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सके। और ये जो मुजाहरे थे ख़ासतौर पर नस्ल जो जनरेशन जी है उसके यानी कि नौजवान इसके अंदर शामिल थे और हुकूमत की जानिब से तकरीबन जो है वो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाबंदी लगाने के बाद हालात मज़ीद कशीदा हो गए। करंट अफेयर्स के सेक्शन में हमने डिस्कस किया मिडल ईस्ट डिप्लोमेसी को जिसमें गज़ा सिचुएशन और ट्रंप मीडिएशन एफर्ट्स के ऊपर बात की। देन यूएन जनरल असेंबली, क्लाइमेट पॉलिसीज़ और सोवरेनिटी डिबेट्स एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को देखा जिस तरह से लद्दाख प्रोटेस्ट है और नेपाल अनरेस्ट। So stay updated daily, read reliable news sources regularly, focus on key players, remember names, dates and locations, and track international events, UN meeting, diplomatic visits and regional conflicts.
तो जनरल नॉलेज के सेक्शन में अब हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चंस को। और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी में नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका फाउंडेड द मुस्लिम लीग इन 1906 टू एडवोकेट मुस्लिम राइट्स। इट लेटर लीड द पाकिस्तान मूवमेंट अंडर जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है 1940। द रेजोल्यूशन पास्ड ऑन 23 मार्च 1940 इन लाहौर, डिमांडेड अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड एंड इट लेड द फाउंडेशन फॉर पाकिस्तान क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट बाय एरिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान कवर्स about 44% of Pakistan total area and its vast deserts and mountains make it the largest province. The next question, the national language of Pakistan is option C, Urdu. Urdu was chosen as the national language in 1947 to unify diverse linguistic groups and it's spoken by 7% as the first language but widely understood. Then next question है, the Tarbela Dam is built on which river। तो इसका सही जवाब है Indus। Tarbela Dam completed in 1976 is on the Indus River in KPK and it's one of the world's largest earth-filled dams. Next question, which city is known as the city of gardens in Pakistan। तो सही जवाब है लाहौर। Lahore earned the title for its Mughal era gardens like Shalimar and it's a cultural hub with historical significance. Next question, the K2 mountain is located in which range। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है Karakoram। K2, the world's second largest peak, is in the Karakoram range in Gilgit-Baltistan and it's a challenging climb for mountaineers. Next question, 188, Pakistan first constitution was adopted in। तो इसका सही जवाब है 1956। 1956 constitution established Pakistan as Islamic Republic and it was replaced in 1962 and later by the 1973 constitution. The next question, the China-Pakistan economic corridor connects Gwadar to which Chinese city। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कासीगा। CPEC links Gwadar port to Kashiga in Sangkyang via roads and railways and it's a $62 billion project for trade and energy. Next question, which Pakistani scientist won the Nobel Prize in Physics। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है Abdul Salam। Abdul Salam won the 1979 Nobel Prize for his electroweak theory and unifying weak and electromagnetic forces. He is Pakistani only Nobel laureate. Next question हमारे पास, the Battle of Plassey was fought in which modern day country। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंडिया। fought in West Bengal and it marked British East India Company dominance. It impacted the subcontinent including modern Pakistan. Next question देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। तो इसका जवाब ऑप्शन बी द इंडस रिवर। द इंडस रिवर irrigates 85% of Pakistan farmland via canals and it supports agriculture and hydropower generation. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान नेशनल पोइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इलामा इकबाल। इलामा इकबाल पोइट्री इंस्पायर्ड द पाकिस्तान मूवमेंट नॉट एबली टू सारे जहां से अच्छा एंड ही सेलिब्रेटेड एज द आइडियोलॉजिकल फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194, द शिमला एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन विच ईयर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1972। साइन आफ्टर द 1971 वाज इट एम टू फोस्टर पीस एंड नॉर्मलाइज रिलेशन। इट वाज लीड बाय जुल्फकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 195, विच पोर्ट सिटी इज पाकिस्तान मेन इकोनॉमिक हब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है कराची। कराची हैंडल 60% of Pakistan trade and hosts the stock exchange. Its port is vital for imports and exports. Next question, the Mangla Dam is located in which region। तो इसका सही जवाब है आज़ाद कश्मीर। Mangla Dam built in 1967 on the Jhelum River is in Azad Kashmir and it generates 15% of Pakistan electricity. Next question है कि Pakistan became a member of the United Nations in which year। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है 1947। पाकिस्तान ज्वाइन द UN on 30 September 1947 soon after independence and it actively participates in peacekeeping missions. Next question, the largest desert in Pakistan is। तो इसका सही जवाब है थार डेजर्ट। द थार डेजर्ट इन सिंध
the largest in Pakistan, and it's shared with India and sports nomadic communities. Next question. Which Pakistan city is known as the Manchester of Pakistan? लाहौर, कराची, फैसलाबाद और सियालकोट? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, फैसलाबाद. Faisalabad produce 50% of Pakistan textile and earning the nickname, so its looms supply global markets. और last question है, the national flower of Pakistan is option B है jasmine. Jasmine symbolize purity and is used in cultural ceremonies, and it was chosen for its fragrance and abundance. So that concludes our general knowledge practice session. Review the questions you found challenging and ensure you remember key facts and concepts. In the next lecture, we will continue with the next set of subjects or revision exercises to strengthen your overall preparation. So keep practicing consistently and aim for accuracy in every attempt.